Welcome back to my YouTube channel. Today here I will teach you conversation on past continuous tense. Here mainly we will look how to have conversation with someone on past continuous tense. It is mandatory topic for speaking English as well as grammar, but mainly we will look speaking part. Now look on board. There are two person. One is Ram, another is Shyam. Both are playing conversation to each other. One is Ram, another is Shyam. There are two persons, one is Ram, other is Shyam. Now, our topic, how to have conversation. On past continuous tense. Now, here firstly we are taking yes no question, yes no questions. Mainly here we are taking yes no question. Yes no question means interrogative question and intro plus negative question that I told you in my first and second session of past continuous tense. Now, dialogue 1. Ram asks question to Shyam. बिजली का बिल का नहीं बताइए ना. Was he taking medicine on time? These days. Ram asked question to Shyam. Dialogue 1. Was he taking medicine on time? These days. Was he taking medicine on time? These days. Its Hindi meaning will be क्या हुआ इन दिनों टाइम पे मेडिसिन ले रहा था. क्या हुआ इन दिनों टाइम पे मेडिसिन ले रहा था. श्याम says, oh yes. Oh yes. He was taking medicine on time to recover from disease. Because he ate cold fever. He was taking medicine on time to recover from fever because he had cold fever. Sorry. He was taking medicine on time to recover from disease because he had cold fever. He was taking medicine on time to recover from disease. डिसीज से रिकवर होने के लिए टाइम पे मेडिसिन ले रहा था क्योंकि उसे कोल्ड फीवर था. इवन ही विल से ओ यस he was. आपको ये वाले रिप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू डोंट नीड टू से दिस रिक्वायरमेंट. मतलब आप इतना बोलेंगे हो यस he was. In case of no, oh no, Shyam replying him.
Shyam replies him, oh no, he was not taking medicine on time. He was not taking medicine on time. Take because he was well now. He was not taking medicine on time because he was well now. He was not taking medicine on time because he was well now. Its Hindi meaning will be वो टाइम पे मेडिसिन नहीं ले रहा था क्योंकि वो अब अच्छा था. वो टाइम पे मेडिसिन नहीं ले रहा था क्योंकि वो अब अच्छा था. Even he will say, oh no, he was not. That is enough for replying, oh no, he was not. Oh no, he was not. Even he will say, oh no, he wasn't. आपको इस कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को यूज करना है और ब्रीफ रिप्लाई को यूज करना है. आपको ये सेंटेंस को पूरा कंप्लीट बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप सिंपल लैंग्वेज में यूज करेंगे ही वाज नॉट. यदि आपका क्वेश्चन यस नो से स्टार्ट होता, इन केस ऑफ यस में यू विल से ही वाज. In case of no, he was not, even he wasn't. That is its contraction form. Now again Ram asked question to Shyam. Dialogue 2. Ram, were they interrupting you while cooking dinner. Ram asked question to Shyam, were they interrupting you while cooking dinner? Were they interrupting you while cooking dinner? Its Hindi meaning will be, क्या वे आपको डिनर बनाते समय टोक रहे थे? क्या वे आपको डिनर बनाते समय टोक रहे थे? श्याम says, oh yes, they were interrupting me. Shyam says, oh yes, they were interrupting me. Even he will express, oh yes, they were. That is enough for replying. Oh yes, they were. इतना भी रिप्लाई के लिए इनफ है. आप ये सेकंड वाले को प्रेफर करेंगे यस नो के फॉर्म में. आप ओनली बोलेंगे यस दे वर. यदि आपको क्वेश्चन यस नो के फॉर्म में है तो आप ब्रीफ रिप्लाई को प्रेफर करेंगे. नो नीड टू से दिस रिप्लाई. नाउ इन केस ऑफ नो, श्याम सेज, oh no, they were not interrupting me because I was doing my study.
Now he will say they were not interrupting because I was doing my study. They were not interrupting because I was doing my study. Its हिंदी मीनिंग will be वो वे इंटरप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं अपनी स्टडी कर रहा था। वो इंटरप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं अपनी स्टडी कर रहा था। आप ऐसा बोल दें, इवन यू कैन से दे वर नोट। आप ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो ब्रीफ फॉर्म है इसे यूज करेंगे रिप्लाई के लिए इन केस ऑफ यस नो। यदि यस है तो आप बोलेंगे ओ यस दे वर, नो ओ नो दे वर नोट। ये आपका इनका से रिप्लाई के लिए। बाकी आपकी चॉइस है कि आप लॉन्ग रिप्लाई भी दे सकते हैं। ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगा। सेंटेंस विल बी एप्रोप्रिएट फॉर रिप्लाइंग, दैट इज योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट टू यूज टू रिप्लाई योर आंसर। जो भी आप आंसर देना चाहते हैं ये दोनों में से प्रेफर करके आप दे सकते हैं, बट आप शॉर्ट को ज्यादा प्रेफर करें। नाउ अगेन राम आस्क्ड क्वेश्चन टू श्याम। Dialogue 3. Here we are taking yes no question on interrogative plus negative. Here we are taking yes no question on interrogative plus negative, means हम interrogative plus negative sentence का yes no question ले रहे हैं, जिसको आप negative question भी कहते हैं। Now were you not throwing a ball in cricket? Ram asked question to Shyam, were you not throwing a ball in cricket? Its Hindi meaning will be, क्या आप क्रिकेट में बॉल थ्रो नहीं कर रहे थे, या फिर क्या आप क्रिकेट में बॉल नहीं फेंक रहे थे। ये आपका यस नो क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। इंट्रो प्लस नेगेटिव का ये एग्जांपल है। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। इस सेंटेंस को आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं। मीनिंग विल बी सेम। अब कैसे आप इसको, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते तो आप इस नोट को और वर्ब को साथ में कंबाइन करेंगे। यू विल कंबाइन दिस नोट एंड वर्ब साइमल्टेनियसली। मींस weren't you throwing a ball in cricket? Weren't you throwing a ball in cricket? Its Hindi meaning will be, क्या आप क्रिकेट में बॉल नहीं फेंक रहे थे? That is its Hindi meaning. Now meaning will be same for both sentence. आप इस सेंटेंस की मीनिंग भी सेम है और इसकी भी सेम है। आप जिसको चाहे यूज करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आप किसी भी इसको सेंटेंस को यूज करके क्वेश्चन की आस्किंग कर सकते हैं। अगर आप ये वाले को प्रेफर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आप ये सेकंड वाले को प्रेफर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इट विल पुट हाईएस्ट एडवांस इफेक्ट और आस्किंग क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, श्याम सेज ओ यस। ओ यस आई वॉज throwing a ball. Oh yes, I was throwing a ball. मतलब मैं बॉल फेंक रहा था। Even श्याम says, oh yes, I was. That is also enough for replying. You will say, oh yes, I was. आप इसे प्रिफर करें या फिर इसे बोल दें। Sentence will be same and meaning will be same. आप ओ एस ब्रीफ फॉर्म में बोलते हैं ओ एस आई वॉज, इतना आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट, श्याम से ओ नो, ओ नो आई वॉज नॉट throwing
ball. Oh no, I was not throwing a ball. Oh no, I was not throwing a ball. Its Hindi meaning will be मैं बॉल नहीं फेंक रहा था. Its Hindi meaning will मैं बॉल नहीं फेंक रहा था. Oh no, I was not. I was not. Oblique I wasn't. ये आपका इस तरीके से ओएस के फॉर्म में ओएस आई वाज थ्रोइंग बॉल, मैं बॉल फेंक रहा था, आप इसे बोलते हैं या फिर बोले आई वाज. इतना ही बोल देंगे तो भी काफी है. निगेटिव के केस में ओ नो आई वाज नॉट थ्रोइंग बॉल, मैं बॉल नहीं फेंक रहा था. इवन ओ नो आई वाज नॉट, आप इतना कह दें तो भी आपके लिए इनफ है. यस नो के केस में आप ब्रीफ फॉर्म को यूज कर सकते हैं. नाउ अगेन राम आस्क्ड क्वेश्चन टू श्याम. Ram asked question to Shyam. Dialogue 4. Dialogue 4. Again here we are taking yes no question on interrogative plus negative. वो she not listening to music, listening to the music was she not listening to the music, was she not listening to the music. its Hindi meaning will be क्या वो म्यूजिक नहीं सुन रही थी, क्या वो म्यूजिक नहीं सुन रही थी. ना अभी इस क्वेश्चन को मैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करके फ्रेमिंग करता हूं. अभी ये नोट और वॉस को मैं साथ में कंबाइन करके इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग करता हूं. आप कैसे करेंगे? wasn't she listening to the music. wasn't she listening to music meaning will be same. क्या वो म्यूजिक नहीं सुन रही थी. श्याम says oh yes, oh yes. she was oh yes she was listening to the music. चाहे आप ऐसा बोल दें oh yes she was listening to the music या फिर आप ऐसा बोले oh yes she was. आप इतना भी बोल दें oh yes she was, that is enough for replying. इतना भी आपके लिए enough है, काफी है रिप्लाई के लिए. In case of no, Shyam says oh no she was not oh no she was not listening to the music because she was studying. she was not listening to the music because she was studying. आप ऐसा बोलते हैं होल रिप्लाई, या तो आप सिंपल बोल देंगे oh yes she was not. आप इतना बोल देंगे she was not तो भी आपका yes no के फॉर्म में इनफ है. ये आपका इंट्रो प्लस नेगेटिव एग्जांपल्स हैं. yes no क्वेश्चन वी कॉल इट, इसको भी हम yes no क्वेश्चन बोलते हैं या फिर नेगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं, बोथ आर सेम. नाउ अगेन डायलॉग 5. Ram asked question to Shyam. Was an artist not seeking a job. Was an artist not seeking a job. Was an artist not seeking a job. Its Hindi meaning will be क्या आर्टिस्ट जॉब नहीं ढूंढ रहा था, क्या आर्टिस्ट जॉब नहीं ढूंढ रहा था. ये भी आपका यस नो क्वेश्चन है इंट्रो प्लस नेगेटिव का. अभी इस सेंटेंस को आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के फ्रेमिंग करके भी लिख सकते हैं. ये नोट जो है वॉस के साथ में कंबाइन होगा, ये बन जाएगा आपका wasn't, आपका बन जाएगा wasn't.
तो आप ऐसे बोलते वॉजंट एन आर्टिस्ट सीकिंग अ जॉब। कैसे बनेगा? वॉजंट एन आर्टिस्ट सीकिंग अ जॉब। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सकते हैं, चाहे आप इसको इस तरीके से पूछ लें चाहे इस तरीके से पूछ लें। बोथ आर सिमिलर, मीनिंग विल बी सेम, दोनों एक ही चीज है, मीनिंग भी आपकी सेम होगी। बट आप सेकंड वाले में जिस टाइप से पूछेंगे तो ज्यादा इंपैक्ट करता है। ओ यस, श्याम सेज ओ यस he was, oh yes he was, or oh yes he was seeking a job, oh yes he was seeking a job, its Hindi meaning will be वो जॉब ढूंढ रहा था। इवन ये बोल रहे oh yes he was, या तो सिंपल बोले oh yes he was, ऐसा बोलेगा he was seeking a job, या फिर बोले oh yes he was, इतना भी इसके लिए काफी है। इन केस ऑफ नो, oh no he was not, he was not, oh no he was not। इसकी हिंदी में ये होगी कि वो जॉब नहीं ढूंढ रहा था, इतना ही बोल देगा यार। ओ या नो he was not seeking a job, या फिर बोल दे he was not, इतना भी आपके लिए काफी है। आप इतना बोलेंगे यस के केस में, ओ यस he was, नो के केस में ओ he was not। That is enough for replying. Now again Ram asked question to Shyam. Ram asked question to Shyam. Dialogue 5. Now here we are taking WS question. Here we are taking WS question means हम WS question को यहाँ पे देखेंगे। How to ask WS question to someone. Ram asked question to Shyam. Why was the manager dispatching check in your account? Now Ram asked question, why was a manager dispatching check in your account? Why was a manager dispatching check in your account? Its Hindi meaning will be मैनेजर आपके अकाउंट में चेक क्यों भेज रहा था? मैनेजर आपके अकाउंट में चेक क्यों भेज रहा था? डिस्पैचिंग मीन्स होता है, डिस्पैचिंग का सिमिलर मीनिंग होता है सेंडिंग। क्या होता है? ये जो डिस्पैच है इसका सिमिलर मीनिंग होता है सेंडिंग, मतलब भेजना। नाउ श्याम से, अच्छा वन मोर थिंग, WS के क्वेश्चन में आप अपने व्यूज को मोर से मोर टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अपने जो व्यूज है उसको मोर से मोर टर्म में डिस्क्राइब करेंगे, और जितने भी आप अपने व्यूज यहाँ पे शो करना चाहें आप बोल सकते हैं। जितने आपके छोटे उतने आपके एक्सप्रेस होंगे। आप जितने भी रिप्लाई करना चाहते हैं उतने बोल सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, और यस और नो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है इसमें कि आप ब्रीफ में दे दें और लॉन्ग में दे दें। इसमें आपको रिप्लाई जितना आपके व्यूज एक्सप्रेस होंगे उतना आप कर सकते हैं। इसमें यस नो का कोई रोल नहीं है। श्याम से I wanted to take loan. That is why he was dispatching check in my account. I wanted to take loan. That is why he was dispatching check in my account. I wanted to take loan. That is why he was dispatching check in my account. Its Hindi meaning will be मैं लोन लेना चाहता था इसलिए वो मेरे अकाउंट में
चेक भेज रहा था। मैं लोन लेना चाहता था इसलिए वो मेरे अकाउंट में चेक भेज रहा था। ये आपके व्यूज आपने एक्सप्रेस किए। आपके और भी कोई व्यूज है तो आप इसके साथ में कंटिन्यू बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसे या भेज रहा था उसके बाद आप बोलेंगे ही वांटेड टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करना चाहता था। आप और भी बोल सकते हैं, आपके आपके व्यूज को इसमें आपको डिस्क्राइब करना है। नाउ अगेन राम आस्क्ड क्वेश्चन टू श्याम। डायलॉग 6। अच्छा था का गेट खुले से लगा थी। वर वेयर वर दे वर दे वर दे स्टैंडिंग टू पे योर electricity bill। Ram asked question to Shyam, where were they standing to pay your electricity bill? Where were they standing to pay your electricity bill? Its Hindi meaning will be वे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए कहाँ खड़े थे। वे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए कहाँ खड़े थे। अभी आप लोग इस सेंटेंस में देख रहे होंगे कि इसकी जो हिंदी है टोटली डिफरेंट है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थी मैनेजर आपके अकाउंट में चेक क्यों भेज रहा था, और सेकंड में वो आपका बिल जमा करने के लिए कहाँ खड़े थे। तो ये दोनों की हिंदी आपकी डिफरेंट है। लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया कि एक्शन यदि आपका प्रोग्रेसिव फॉर्म में था तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, कोई ट्रांसलेशन का यहाँ पे रोल नहीं होता। यही मेरा समझाने की मीनिंग है। नाउ श्याम सेज they were paying it by standing in a queue, by standing in a queue। They were paying it by standing in a queue। They were paying it by standing in a queue। Its Hindi meaning will be वे लाइन में खड़े होकर इसे पे कर रहे थे। वे लाइन में खड़े होकर इसे पे कर रहे थे। क्यू मीन्स लाइन। आप अपने व्यूज को और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके आगे भी यदि आप अपने व्यूज को एक्सप्लेन करना चाहें तो बता सकते हैं। जैसे कि दे वर पेइंग इट बाय स्टैंडिंग इन अ क्यू, वे लाइन में खड़े होकर इसे पे कर रहे थे। बिकॉज आप ऐसा बोलते हैं कंजक्शन के थ्रू, बिकॉज they had huge debit because they had huge debit, मतलब उनके पास में ज्यादा उधार था। Ram asked question to Shyam। Dialogue 7। How long was he waiting for her at bus stop? How long was he waiting for her at bus stop? How long was he waiting for her at bus stop? Its Hindi meaning will be वह उसके लिए बस स्टॉप पर कितनी देर से इंतजार कर रहा था। वह
उसके लिए बस स्टॉप पर कितने देर से इंतजार कर रहा था, ये इसकी हिंदी होगी। या फिर वह उसके लिए कब तक इंतजार कर रहा था, ये भी इसकी हिंदी हो सकती है। हाउ लॉन्ग मतलब कब तक, ऑब्लिक कितने देर। नाउ श्याम सेज he was waiting for her around 1 hour, around 1 hour, because इधर से किसी फोन आया था। चालू हो गया। because he wanted to greet her on birthday celebration. He was waiting for her around 1 hour because he wanted to greet her on birthday celebration. He was waiting for her around 1 hour because he wanted to greet her on birthday celebration. इसकी हिंदी ये हुई, वो 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि वो उसे बर्थडे सेलिब्रेशन पे बधाई देना चाहता था। वो उसको 1 घंटे से इंतजार कर रहा था क्योंकि वो उसे बर्थडे सेलिब्रेशन पे बधाई देना चाहता था। ये श्याम के व्यूज हैं जो उसने एक्सप्रेस किए। और भी वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है WH के क्वेश्चन में। WH के क्वेश्चन में कोई सीमा नहीं है, ये इनफिनाइट है। इसका कोई रोल नहीं है कि आपको 50 वर्ड में डिस्क्राइब करना है, 10 वर्ड में डिस्क्राइब करना है, ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है। आपके जितने भी व्यूज है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ अगेन Ram asked question to Shyam. Dialogue 8. What was legislator so the word was local authority issuing infinity. Dialogue 8. What was local authority issuing in city? Dialogue 8. What was local authority issuing in city? Its Hindi meaning will be local authority city में क्या जारी कर रही थी या फिर क्या इशू कर रही थी। लोकल अथॉरिटी सिटी में क्या इशू कर रही थी। श्याम says they were Shyam says authority was issuing direction to maintain law
Shyam says an authority was issuing direction to maintain law and order. An authority was issuing direction to maintain law and order. Means authority law और order को maintain करने के लिए direction issue कर रही थी. Authority law and order को maintain करने के लिए direction issue कर रही थी. That is its Hindi meaning. अच्छा, आप ये n और a के में सेंस में कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर, बिकॉज दीज आर आर्टिकल. ये आर्टिकल होता है. एज पर कॉमन नाउन अगर आपको दिखता है तो आप आर्टिकल पुट करेंगे, और यदि आप नहीं भी पुट करते हैं ये आर्टिकल तो भी आपके सेंटेंस में कोई डिफरेंट नहीं आता, मीनिंग विल बी सेम. बस एज पर ग्रामेटिकल टर्म यू विल हैव टू यूज इट. ग्रामेटिकल टर्म के अकॉर्डिंग आपको पुट करना पड़ेगा. ऐसा स्पोकन में आप आर्टिकल एन, द, एट, ऑन, दैट में भी एलिमिनेटेड इन स्पीकिंग टर्म. आप इसको स्पीकिंग टर्म में एलिमिनेट कर सकते हैं. Again, Ram asked question to Shyam. Ram asked question to Shyam. Dialogue 9. How was your friend driving his car? How was your friend driving his car? How was your friend driving his car? Its Hindi meaning will be आपका फ्रेंड उसकी कार कैसे चला रहा था. आपका फ्रेंड उसकी कार कैसे चला रहा था. Shyam says he wanted to reach the station that is why he was driving his car. He wanted to reach the station. That is why he was driving his car. Its Hindi meaning will be वो स्टेशन पहुंचना चाहता था इसलिए वो उसकी कार चला रहा था. वो स्टेशन पहुंचना चाहता था इसलिए वो उसकी कार चला रहा था. Now again Ram asked question to Shyam. Dialogue 10. Whose books were we studying now this. Now Ram is asking question, whose books were we studying nowadays? Whose book were we studying nowadays? Its Hindi meaning will be हम आजकल किनकी बुक्स पढ़ रहे थे. हम आजकल किनकी बुक पढ़ रहे थे या फिर हम आजकल किसकी बुक पढ़ रहे थे. बोथ में भी इट्स हिंदी मीनिंग. Shyam says we were studying our friends books now
our friend books nowadays. We were studying our friend books nowadays. Its Hindi meaning will be आजकल हम अपने फ्रेंड्स की बुक पढ़ रहे थे. आजकल हम अपने फ्रेंड्स की बुक पढ़ रहे थे. Now I have told you several example. It is mandatory to conduct it as for as speaking English. Now thus you will create several example by looking and studying this session, and you can also frame a lot of question in WH. So you have to practice speaking English with your friends, father, mother, siblings, colleagues, mate and classmate, so on. आप स्पीकिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस अपने फ्रेंड के साथ में कर सकते हैं, आपके फादर के साथ में कर सकते हैं, मदर के साथ में कर सकते हैं, आपके जो कलीग्स होते हैं और जो फ्रेंड है, भाई बहन है, उनके साथ आप स्पीकिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं. और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन पार्ट है. यदि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगा, एज वेल एज आपकी फ्लुएंसी भी इंक्रीज होगी. दैट्स इफ यू लाइक माय वीडियो, please like, share and subscribe it, because you will find next notification of that video.